مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ حد بندی کا عمل مکمل ہونے جا رہا ہے اور اس کے کچھ ماہ بعد جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات منعقد ہوں گے۔ نیٹ ورک 18 کے گروپ ایڈیٹر ان چیف راہل جوشی کے ساتھ خاص بات چیت میں امت شاہ نے کہا کہ کشمیر ہندوستان کا اٹوٹ حصہ ہے اور اس پر کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی ہے۔ میں نے یہ بھی آپ سے پچھلی بار پوچھا تھا، ایک بار اور پوچھوں گا کہ کشمیر کی جنتا کب امید کر سکتی ہے کہ وہاں چناؤ ہوگا؟ ڈیلیمیٹیشن سماپت ہونے کو آیا ہے۔ ڈیلیمیٹیشن سماپت ہونے کے بعد جو 6-8 ماہ کا واجب سمے ہوگا اس میں ہم ضرور چناؤ کرا لیں گے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے اس میں۔ عمران خان نے ابھی کچھ ہفتے پہلے کہا کہ انڈیا اور پاکستان کو اپنے ایشوز خود بیٹھ کر آپسی سمجھوتے سے ریزالو کر لینے چاہیے۔ کشمیر کے ایشو پر انہوں نے خاص کر کے یہ بات کہی ہے، کیا کہیں گے آپ ان سے؟ دیکھیں، میرا تو بہت اسپشٹ ماننا ہے کہ کشمیر بھارت کا ابھن انگ ہے اور اس پر کیا چرچا ہو سکتی ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ چرچا کا کوئی پوزیشن ہے، دیش کی پوزیشن ہے، پارلیمنٹ میں لی ہوئی پوزیشن ہے، اور ایک سرکار نے نہیں، انیک سرکاروں نے پوزیشن لی کہ کشمیر دیش کا ابھن انگ ہے۔ محکمہ پی ایچ ای میں کام کر رہے ڈیلی ویج ملازمین نے جموں میں احتجاج کیا۔ یہ احتجاج مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ کی رہائش گاہ کے باہر کیا گیا۔ احتجاجی ملازمین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس نے لاٹھی چارج کیا۔ ڈیلی ویج ملازمین کی مانگ ہے کہ ان کو مستقل کیا جائے۔ وہ تنخواہوں میں اضافے کے علاوہ دیگر دیرینہ مانگوں کو پورا کرنے کی مانگ کر رہے ہیں۔ احتجاجی ملازمین کا کہنا ہے کہ وہ لمبے عرصے سے اپنے مطالبات کو پورا کرنے کی مانگ کرتے آئے ہیں، مگر حکومت ان کی جانب کوئی توجہ نہیں دے رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ احتجاج کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ ان کو منتشر کرنے کے لیے ہلکا لاٹھی چارج کیا گیا۔ ہمیشہ ان کا کام ہے جھوٹے وعدے کرنا۔ اگر ڈیلی ویژن نے ان کو جتایا ہے اور ان کو ہرا کے دکھائے گی، یہی ڈیلی ویژن ان کا بیڑا گرک کرے گی۔ کیا 1750 پہ ہمارا گھر چلتا ہے؟ ان کے بچے جو لاکھوں کے کھلونے لیتے ہیں، یہی ڈیلی ویژن جو ان کے گھر میں پانی دیتے ہیں۔ آج جے کے پی پولیس نے ہمارے ساتھیوں پہ ڈنڈے برسائے، لاٹھیں برسائی۔ کیا یہی بھی اچھے دن ہے؟ مودی جی سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یہی اچھے دن ہے؟ جب الیکشن آنی تھی نا تو بہت باتیں کرتے ہیں، ہمارے گھر جاتے تھے جولی ایسے ہٹتے تھے۔ جب گورنمنٹ ہماری آئے گی تو ہم پنڈت جی تمام پکا کریں گے۔ جب گورنمنٹ آ گئی تو ہم ان کو پوچھ رہے ہیں کب پکا کرنا ہے؟ اگلے مہینے میں کریں گے، اگلے میں کریں گے۔ ایسے کرتے 2.5 سال ہو گیا ہے ہم کو لمکاتے ہوئے۔ آج تو ہم جا رہے ہیں جندرانا کو پوچھنے کتنے وعدے کتنے دیے، ایک ٹائم ہم کو دیجیے۔ ہم جب ڈیلی ویجر بجارا پرماننٹ دو ہی ہے، کیونکہ ان کو 7,000 میں کیا بنتا ہے؟ بچے پوچھتے ہیں ڈیڈی آپ کب پرماننٹ ہوگے؟ جب آپ چلے جاؤ گے تب پرماننٹ ہوگے۔ سابق ملیٹنٹوں کی پاکستانی نژاد بیویوں نے پریس انکلیو سری نگر میں احتجاج کیا۔ احتجاجیوں نے ٹریول ایڈوائزریز ہٹانے کی مانگ کی تاکہ وہ پاکستان میں اپنے اہل خانہ سے مل سکے۔ ان خواتین نے ہند و پاک حکومتوں سے دردمندانہ اپیل کی ہے کہ یا تو ان کی باضابطہ کاری کو یقینی بنایا جائے یا انہیں واپس ان کے گھروں کو بھیجا جائے۔ احتجاج کے دوران ان خواتین کے بچے بھی ان کے ساتھ موجود تھے۔ پہلے سوچنا تھا نا کہ ہم 4,000 لوگوں کو بلا رہے ہیں، ان کا اچار بنانا ہے ادھر، ان کو ہم کھلائیں گے کہاں سے، ان کو ہم رہنے کا کہاں سے کر کے دیں گے؟ پالیسی تو بہت مزے سے اناؤنس کیا آپ نے، 26 پیج آپ نے اناؤنس کر دیے اور اتنے لوگوں کی زندگی داؤ پہ لگا دی۔ یہ سوچا نہیں کہ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں اس کے بارے میں۔ تو میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی، چاہے پاکستان کی حکومت ہو چاہے ہندوستان کی حکومت ہو، کہ ہم بھی انسان ہیں اور ہم انسانوں سے، ہم پیپل سے، ہم لوگوں سے ہی آپ کی یہ جمہوریت چل رہی ہے، آپ کا یہ ملک چل رہا ہے۔ دونوں ملکوں سے میں کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگ پلیز اس مدعے پہ کام کریں اور جلد سے جلد ہمیں کوئی ٹریول ڈاکیومنٹس دیں، جانے آنے کے لیے راستہ دیں۔ پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ مفتی نے کہا کہ حکومت جموں کشمیر میں بے روزگاری کے مسئلے سے نمٹنے میں ناکام ہو گئی ہے۔ وہ جموں میں کئی وفود سے ملاقات کے بعد میڈیا سے بات کر رہی تھی۔ بی ایس ایف، سی آئی ایس ایف اور بارڈر بٹالین کے امیدواروں نے بھی جموں میں پارٹی دفتر پر مفتی سے ملاقات کی۔ محبوبہ نے کہا کہ بے روزگاری سب سے بڑا مسئلہ ہے جس کی جانب حکومت کو توجہ دینی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ تعلیم یافتہ بے روزگار نوجوان کافی پریشان ہیں اور حکومت کو اس مسئلے پر فوری توجہ دینی چاہیے۔ سی آئی ایس ایف نے جو امیدوار ہیں جنہوں نے اپلائی کیا ہے، اس میں جو بارڈر بٹالینز کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، ان کے جو سلیکشن ہے وہ رکی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے بہت پریشان ہیں یہ لوگ اور اوور ایج ہونے والے ہیں۔ تو میری یہی ہے گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی
जल्दी से जल्दी इनकी सिलेक्शन होनी चाहिए ताकि ये बेचारे अपनी रोज़ी रोटी कमा सके। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट वाले आए थे मेरे पास, जो इन्होंने व्हीकल्स का रखा हुआ है जम्मू और श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में 20 साल का रखा है कंडम, और जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें 25 साल का रखा है। आफ्टर ऑल दूसरे डिस्ट्रिक्ट से तो जम्मू ही आना है, श्रीनगर ही आना है। ट्रांसपोर्ट वाले तो ऑलरेडी बहुत सफ़र कर रहे हैं, बड़ा नुकसान है इन लोगों का। ऑलरेडी लोन लिया हुआ है, डीजल प्राइसेस इतनी हाई हो गई हैं। तो ये सब दोनों जो है ये डेलीगेशंस आए थे, तो मैं उम्मीद करती हूँ सरकार इसमें कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लेगी। वज़ीर ममलिकत बराए पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि मुल्क के नौजवान अपनी रोजी रोटी कमाने और साथ ही बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम करने के लिए स्टार्टअप्स में गहरी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। जितेंद्र सिंह जम्मू में मीडिया से बात कर रहे थे, जहां जिला किश्तवाड़ में मरकजी स्पॉन्सरशुदा मुख्तलिफ स्कीमों के निफाज का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग मुनक्किद की गई। अफसरान ने इन स्कीमों की सूरत हाल की तफसीली रिपोर्ट पेश की, जिनमें से ज़्यादातर का मकसद तालीम याफ्ता नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा करना है। सिंह ने कहा कि जिला डोडा के नौजवानों ने ज़राअत के शोबे में स्टार्टअप में गुजरात समेत मुल्क के दीगर हिस्सों के नौजवानों को एक नई राह दिखाई है। ये कि स्टार्टअप्स को लेकर के, विशेषकर एग्रीकल्चरल स्टार्टअप्स को लेकर के एक नया आयाम, एक नया रास्ता देश भर के युवाओं को दिखाने का काम ज़िला डोडा से हुआ है। आज स्थिति ये है कि गुजरात से और अन्य कई प्रदेशों से भी युवा इस प्रकार के व्यवसाय का हिस्सा बनने के लिए तत्पर है, और वहाँ की सरकार भी इससे प्रभावित है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि मौजूदा इंतजामिया ने किश्तवाड़ जिले में हाइड्रो पावर जनरेशन को बढ़ाने के लिए बहुत से इक़दाम किए हैं, जिससे पूरे यूटी को फायदा पहुंचेगा। पूर्ण बात यह है कि किश्तवाड़ एक बहुत बड़ा हब बनने वाला है हाइड्रो पावर का। पक्कड़ ढोल 1000 मेगावाट का प्रोजेक्ट काम करना शुरू हो गया है, उसमें काम चालू हो गया है। कीरू प्रोजेक्ट भी वहाँ है। रेटले जो पिछले 8-10 साल से पिछली सरकार के समय से रुका पड़ा था, वो रिवाइव हो चुका है, और देखते देखते आने वाले समय में किश्तवाड़ में जो प्रोजेक्ट्स स्थापित किए जा रहे हैं उनके द्वारा पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश पावर प्लस होने वाला है, पावर सरप्लस होने वाला है। इसके साथ साथ किश्तवाड़ में उड़ान स्कीम के अंतर्गत हवाई अड्डा स्थापित हो रहा है। कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी, ये भी मांग नहीं थी कि वहाँ हेलीकॉप्टर पहुँचे, वहाँ हवाई जहाज़ पहुँचने की योजना है। छानापुरा श्रीनगर में ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से एक शख्स की मौत हो गई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक ऑक्सीजन सिलेंडर्स एक ट्रक में ले जाए जा रहे थे और छानापुरा में सिलेंडर उतारने के दौरान एक सिलेंडर धमाके से फट गया, जिसके नतीजे में एक शख्स शदीद जख्मी हो गया था, जिसकी शनाख्त कैसर अहमद के नाम से हुई है। जख्मी को करीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। मुतवफ़ी का ताल्लुक श्रीनगर से बताया जा रहा है। खड़े थे वहाँ, जो हमारा दुकान वहाँ है, इसको यहाँ एक्सीडेंट हो गया, ये सिलेंडर फट गया और सिलेंडर उतार रहे थे, इसको यहाँ से हो गया डैमेज, को ले गया हड़ून SMS। जिला पुलवामा के राजमहल इलाके में चोरों ने हजारों की तादाद में सेब के पौधों को चुरा लिया है। राजमहल इलाके में रात के दौरान चोरों ने सेब की हाई डेंसिटी नर्सरी में नकब लगाकर भारी तादाद में हाई डेंसिटी के पौधे चुरा लिए। ये इलाके में अपनी नौयत का पहला वाक़या है। चोरों ने ज़मीन से ये सेब के पौधे निकाले हैं। इस वाक़े से पूरे इलाके में तशवीश पाई जा रही है। मुतासरीन ने पुलिस और इंतजामिया से अपील की है कि चोरों के इस गिरोह को बेनकाब किया जाए। पुलवामा पुलिस ने इस हवाले से केस दर्ज किया है। ये थवन चरसी कह प्रेथ कुन गामस मज 5-5 10 लड़कं रात डलन फेरन यपर वो रोज राच बोहड़न नबर नेरनस कह चीर क्या हालात तिथि ये चीर बोहड़न नबर नेरनस कह तो वन गवर्नमेंटस कर अपील पुलवाम DC साहबस कर अपील SPS साहबस कर अपील SHO साहबस कर अपील अस गोस यह माल पन वापस यून। जिला सांबा में चोरी की बढ़ती वारदातों से लोग परेशान हैं। गुज़श्ता शब भी चोरों ने रायमोड मार्केट और झक मार्केट के करीब लगभग 1 दर्जन दुकानों के ताले तोड़कर नक़ब लगाई है। चोरों ने नकद रकम के साथ साथ दीगर सामान उड़ा लिया। बताया जाता है कि आज सुबह 4 बजे के करीब विजयपुर में भी एक टाटा मोबाइल गाड़ी चोरी हो गई। लोगों का कहना है कि कुछ अरसे से जिले में जराइम की शरह में इजाफा हुआ है। लोगों ने इस हवाले से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। ये देखो, तो हमने जब देखा तो हमारे शटर खुले हुए थे,
शटर बंद नहीं थे, शटर खोल के खुला छोड़ के चले गए थे। क्या सुना आसपास भी कहीं चोरी हुई? यहाँ पे अपना जख में चोरी हुई है, ठीक है, ये वहाँ पे कोई 4-5 दुकानें वहाँ पे इन्होंने चोरी की है। बाद में एक विजयपुर में भी अपना ट्रक है, उसकी चोरी भी हुई है। तो हम पुलिस से यही चाहते हैं कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ठीक है। ये दिन ब दिन क्राइम रेट बढ़ रहा ही है, अपना लोगों के नुकसान हो रहे हैं। हम तो पहले सुनते आए थे ये वो, लेकिन अब ये हमारे साथ हुआ है। और मेरी ऊपर दुकान है, एक शॉप है, उसको भी ये तोड़ के, और एक सब्जी वाली है मेरे सामने, उसको भी तोड़ के, और राय मोड़ में सर 6-7 दुकानें हैं, उधर से ले गए। मेरी यही गुजारिश है कि सर आने वाले टाइम में हमारे बच्चों का क्या भविष्य है। आज ये इसको नहीं करोगे, इन पे कंट्रोल नहीं करेगी पुलिस, तो क्या होगा। लेकिन ऐसा ना हो कि हमारे लोगों को सड़कों पर आना पड़े इस बात के। इसलिए हम पुलिस से रिक्वेस्ट करते हैं कि इनको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए और जल्दी से जल्दी इनकी नकेल कसी जाए। जिला रामबन के तहसील हेडक्वार्टर राजगढ़ में चोरों ने 7 दुकानों के ताले और शटर तोड़कर लाखों रुपए मालियत का सामान चोरी कर लिया है। गुज़श्ता रात चोरों ने ये वारदात अंजाम दी। इसका इल्म दुकानदारों को सुबह के वक्त हुआ। पुलिस को इत्तला देने के बाद राजगढ़ पुलिस चौकी से एक टीम जाए वारदात पर पहुंची। इस सिलसिले में मजीद जांच जारी है। सरमाई तातीलात के बाद कश्मीर में तमाम स्कूल खोले जाएंगे। डायरेक्टर एजुकेशन कश्मीर तसद्दुक़ हुसैन मीर का कहना है कि पहली जमात से 12वीं जमात तक तमाम स्कूल 28 फरवरी को सरमाई तातीलात खत्म होते ही खुलेंगे। इस सिलसिले में बच्चों की जिस्मानी और दिमागी सेहत को बेहतर रखने के लिए पूरा ख्याल रखा जाएगा। जो विलेज लेवल एजुकेशन कमेटी होती है, ZRP, एक कमेटी, हाउ दीज इंस्ट्रक्शंस आर इम्प्लीमेंटेड, सारी कुछ तैयारियां हो रही है। हर स्कूल को सैनिटाइज किया जा रहा है, हर स्कूल की जो साफ सफाई सुथराई उस पर आज काम हो रहा है। इस हफ्ते हम इस पे पूरे लगे हुएंगे। वाटर जो कनेक्शंस है उनको रेस्टोर किया जा रहा है। इसी तरीके से सीटिंग अरेंजमेंट कैसा होगा। सपोज किसी स्कूल में हमारे पास 4 ही कमरे होंगे, बच्चे ज़्यादा होंगे, तो उसमें हम शिफ्ट्स में हम बच्चों को बुलाएंगे ताकि सोशल डिस्टेंसेस रहे, और उन शिफ्टों को हम नोटिफाई करेंगे स्कूल स्पेसिफिक कि आज मतलब पहले शिफ्ट में इतने बच्चे आएंगे, दूसरे शिफ्ट में रोल नंबर वाइज डूज एंड डू नॉट्स होंगे। सारी तैयारियां हो चुकी हैं। सेलिब्रिटी माहौल जैसा होगा, बच्चों के साथ खेलेंगे। पहले ही दिन हम असेसमेंट नहीं करेंगे बच्चों, एग्जाम्स थोड़ा सा डिले करेंगे जो फर्स्ट ईयर वगैरह, ताकि दे आर एक्वेंटेड विद द प्रेजेंट जो नया ये आ रहा है। बच्चे आउट ऑफ स्कूल थे, उनका स्ट्रेस था स्ट्रेस लेवल्स हाई थी, दे वर एडिक्टेड टू फोन्स, नाउ दे आर कमिंग फ्रॉम ऑनलाइन टू ऑफलाइन। तो इसमें हमें दिक्कतें आएंगी, बट वी आर फुली प्रिपेयर्ड, वी आर गियर्ड अप। इंशाल्लाह ठीक रहेगा। कश्मीर न्यूज में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। आज मादरी ज़बानों के आलमी दिन के मौके पर सरकारी कामों को एक तरफ रखते हुए न्यूज़ 18 उर्दू आपके लिए ये खुसूसी रिपोर्ट लेकर आया है, जिसमें हम इस बात पर तवज्जो मरकूज़ करेंगे कि कश्मीरी ज़बान क्यों खात्मे के दहाने पर है और आने वाली नस्ल कश्मीरी में बात करने से क्यों शर्म महसूस करती है। पेश है हमारे चीफ करस्पॉन्डेंट परवेज भट्ट की खुसूसी रिपोर्ट। मगर क्या करक स्कूलस मंज मेरी जबान में बात करते हुए ये है सारा परवेज और इसका कजिन नोमान इरफान। इन दोनों बच्चों को अपनी मादरी जबान कश्मीरी में ये छोटी लाइन बोलने के लिए सख्त जद्दोजहद करनी पड़ी। ये न सिर्फ सारा और नुमान बल्कि इनकी उम्र के ज्यादातर बच्चों की कश्मीरी जबान पर बहुत कम गिरफ्त है। मुश्किल कश्मीरी अल्फाज को छोड़ें, इन बच्चों को सादा कश्मीरी अल्फाज का तलफ़ुज़ करना भी कठिन लगता है, लेकिन इसमें इन बच्चों का कोई कसूर नहीं बल्कि इनके वालिदैन और इनके इर्द गिर्द मौजूद मुआशरा इसका जिम्मेदार है। ऐसा मुआशरा जहाँ कश्मीरी ज़बान में बात करना नाशाइस्तगी और तालीम की कमी की अलामत समझा जाता है। वादी कश्मीर ने माजी में संस्कृत, पाले और फारसी जैसी कई ज़बानें देखी हैं, लेकिन कश्मीरी ज़बान हमेशा परवान चढ़ती रही। ताहम चंद दहाइयों पहले अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में मगरबियत के असर ने इस ज़बान को शदीद नुकसान पहुँचाया। मशहूर माहिर लिसानियात M.K. रैना और कश्मीरी शायर
ظریف احمد ظریف نے آسان طریقے سے اس کی وضاحت کی ہے. یت سا بٹھ تک بنیادی وجہ 30 وری برہ اس انگلش میڈیم سکولن ہند چلن گو تتہ آئی پابندی کرنے ین سا کاشر پٹ کت کرو تم غیر شعوری طور تتہ تم انسان تمک استاد تمک یمن یہ خبر قومن ہز شناخت سے زبان آسان یہ پت کن ون وداخ یوت دن فریاد یوت کریں تعمیری رنگس مز وچن کن تہ زبان ہز پرداخ کم ستن گژھِ ون اکوئی چیز سون قلم کار مے کاشر پورمت سکولس مز لہذا تمہ کن دیت مے اللہ تعالیٰ ہن پتہ کاشر قلم تہ مگر بہس استدا یتو یوت کران گر بولیو کاشر پر بولیو کاشر پان ون کرو کاشر علوم ساری یم انگریزس مز اتن ما ہیکو اس متبادل اچھن ونیک تان سائنس کتاب کاشرس مز لہذا یمو ذمہ دارن ہز یہ کام تمو ذمہ دارو کر پن ذمہ داری محسوس. نیلسن منڈیلا ہن ونمت if you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his language, that goes to his heart. ماج زیو ہند قیمت زاننے خاطر تو یہ زاننے خاطر زی کیاز سانہ خاطر ضروری جناب نیلسن منڈیلا سن یہ اخ دوپ کافی ام سچ سارے کتن پھٹ نیران تو ساری شک دور گژھان. ماج زیو ماج ہن زیو تسے مودر یس ماج آسان یت پہ ماج سون پرت کھان دود زانان تتھے پہ ماج زیو مز پن سوری دود بیس بٲوِتھ ہیکان. اگر اس پنہ کٲشر زبان ہنزی کت کرو یل ماج پنہ شرس لگیا بلائے ونان تس سورے سرمایہ سُے شر باسان تو شرس اگر تس سمجھ آسی یوان سور دنیا پنن قدمن تل باسان. پنہ ماج زیو مز تم ساری احساسات بیس تام واتنٲوِتھ ہیکان یم بیس کُنہِ زبانہِ مز واتناون سٹھاہ مشکل چھُ. سٲنۍ ماجہِ زیو چھِ سٲنۍ آئیڈینٹی. مادری زبان کے عالمی دن کے موقع پر جموں کشمیر میں کئی تقریبات منعقد کی جاتی ہیں. اس طرح کی تقریبات پر ہر سال خطیر رقم خرچ کی جاتی ہے لیکن کشمیری زبان کے تحفظ کے لیے کبھی بھی سنجیدہ اقدامات نہیں کیے گئے. دوسری طرف وہ والدین جو کشمیری زبان کو ختم کرنے کی سب سے بڑی وجہ ہے انہیں اس معاملے پر سنجیدگی سے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. جب میں اپنے بچے کے ساتھ کشمیری میں بات نہیں کروں گا تو میں کیسے ایکسپیکٹ کروں گا کہ اس کو ساری لینگویج کشمیری لینگویج وہ سمجھ پائے گا. تو میرے خیال سے ہمیں گھر سے ہی سٹارٹ کرنا چاہیے کیونکہ پیرنٹس ہی پہلے ایک ایسا میڈیم ہے ہوم ہی ایک ایسا میڈیم ہے جہاں سے ہم بچے کو سوشلائز کر سکتے ہیں. ہماری کشمیری پنڈتوں کو یہ عادت ہے وہ جموں میں رہ کے بھی ان حالاتوں میں رہ کے بھی انہوں نے ہمیشہ کشمیر سے پیار کیا ہے. میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں اس بات پہ کہ انہوں نے کشمیری زبان اپنے گھر میں اچھی طرح سنبھال کے رکھی ہے اچھی طرح دوسری جنریشن اس کو ڈیلیور کی ہے. نئی تعلیمی پالیسی سے کئی ریاستوں کی مادری زبانوں میں نئی جان آنے کا امکان ہے کیونکہ یہ پالیسی تعلیم کے لیے اپنی مادری زبان کو منتخب کرنے کی آزادی دیتی ہے. لیکن جب تک ہم بحیثیت معاشرہ اپنی سوچ کو نہیں بدلیں گے تب تک زیادہ تبدیلیاں آنے والی نہیں ہیں. نیوز 18 اردو کے لیے سری نگر سے پرویز بٹ کی رپورٹ. کپواڑہ میں پی ایم آواس یوجنا سے محروم کئی افراد نے احتجاج کیا. ان میں 2 معصوم اور یتیم لڑکیاں بھی تھیں. لچھمپورہ ڈوگرپورہ لنگیٹ کی رہنے والی یہ لڑکیاں مستقل آشیانہ بنانے کے لیے امداد کی خاطر در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو گئی ہیں. احتجاجیوں نے متعلقہ محکمے کی تیار کردہ لسٹ کی جانچ کا مطالبہ کیا ہے. انہوں نے اس لسٹ کو تیار کرنے میں بے ضابطگیوں کا الزام لگاتے ہوئے کئی غیر مستحق افراد کو شامل کرنے کا الزام لگایا. انہوں نے یتیم لڑکیوں سمیت دیگر مستحق افراد کے ساتھ انصاف کرنے کی مانگ کی. ناانصافی نمن بچن پہ یا گو ناانصافی نمن غریب بچارن عوام یس عوامس پہ یتیم کوڑ گوس ملن مکان انصاف گوس گھن خدائس بغیر کہاں نہ خٲلی تتہ چلان سیاست نم غریبن چھُنہٕ کٕہٕنۍ سنان. اتھ زبردست ناانصافی ان غریب عوامس ست گژھان. بہٕ یہ چیز یژھان تۄہہِ اپیل کرو تُہنٛدِ مات لسٹ کٔرِو بِل فور بند تحقیقات کرن ات اصل پٲٹھۍ یس حق چھُ حق وٲلِس دِنۍ حق. یُس لسٹ چھُنہٕ حظ آز یہِ چھُ بے بُنیاد لسٹ یہِ کٔرِنۍ حظ بالکل بند.
तहकीकात के मतलब वो सास 10 सास 5 सास दिवान तस नाव रोजान ओपन नजदीकी गरीब बिचौर यमस लायक रपी 10 कह सह दिवानी कह तमस सान डिलीट कर सुबह नाव शाम डिलीट शाम नाव सुबह डिलीट। मैं इस चीज़ को भी ऐड करना चाहता हूँ कि हम उनको ही उन फैमिलीज़ को ही इस वक्त असिस्टेंस दे सकते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस, जो हमारे आवास प्लस पोर्टल पे रजिस्टर्ड हैं। तो हमने ये देखा है कि कुछ लोग ऑल्दो डिज़र्विंग है लेकिन वो हमारे आवास प्लस के पोर्टल पे जियो टैग नहीं हुए हैं, रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं। ये कोई लगभग 10,000 के करीब ऐसी फैमिलीज़ हैं। तो हमने ऑलरेडी ये मसला भी अपने हायर अप्स के साथ टेकअप किया हुआ है। इस पर हम डिसीजन जो भी आते हैं उसके बाद हम नेसेसरी कार्रवाई कर लें। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस देवसर में स्वच्छ भारत मिशन के तहत बैतुल खला तामीर करने के लिए मुस्तहक अफराद ने एहतजाज किया। उन्होंने इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि लिस्ट में असर और रसूख रखने वाले अफराद और मुलाजमीन का नाम शामिल किया गया है और उनका कहना है कि मुस्तहक कुंबों का नाम लिस्ट से गायब है। उन्होंने कहा कि मकामी पंचायती नुमाइंदों ने लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराया है। उन्होंने मामले की तहकीकात का मुतालबा किया। बीडीओ ने मामले की तहकीकात का यकीन दिलाया। एहतजाज गई SBM पॉइंट खाली BPL वाल मगर ये जन लिस्ट वो VLW नश करो लिस्ट चेक ये खाली APL वाल हम तनख्वाह निवान कम से कम 6 सास रुपये निवान तनख्वाह सरमाई वाली ये नफर खाली BPL। अगर BDO सबस कर गुजारिश अगर सह मौका पे यी वनकस सह कर चेक तथ वुच कुछ अत काबिल अगर पे सेंटर गवर्नमेंट फंड दिवान मगर यह कोत गसान मसल 2012 पे वो तम वन तुम दियो फोटो दिस बहुरी मगर अस ना पोक ब्रोट इन टोटल कहें वो अगर यव ती आये दोप दी सा फोटो दी पंच सोबस सरपंच सोबस दोप वो गन 2 दहन मज ये ना नाव कुछ ना कहें दोप तुंद नाव सेलफ 12 पे हतन लिस्ट अगोस ना यह कत। ये जो डाटा फ्रीज हुआ है ऑनलाइन ये 18 की बात है जी। तो उसके बाद में भी कोई डबल एंट्री हुई होगी लेकिन अभी जो हमारा एक्सरसाइज चल रहा है वो हम फिल्टर आउट कर रहे हैं जी सर कि कहाँ पे डबल एंट्री हुई है, कौन एम्प्लॉई है, उनको हम वीड आउट कर रहे हैं। तो ये सारा क्लियर करके देंगे, जो भी इनके शक शुबात होंगे वो हम इनको क्लियर करके देंगे। महकमे जंगलात के स्पेशल फॉरेस्ट डिवीजन ने जंगलात से गैर कानूनी तौर पर काटी गई लकड़ी के अलावा कई घोड़े जब्त किए हैं। तफसीलात के मुताबिक DFO कुलगाम की हिदायत पर रेंज अफसर कुलगाम की टीम ने दौरान शब शाह कुलगाम इलाके में एक नाका लगाया। इस दौरान स्मगलरों से कई मकाफुट इमारती लकड़ी जब्त करके अलावा जेर इस्तेमाल घोड़े भी बरामद किए गए। महकमे ने मुतल्लिका पुलिस थाने में केस दर्ज कर लिया है। हमने 3 घोड़े और 26.71 CFT सीज किए हैं। 3 लोगों का हमने पर्चा काटा है स्मगलरों का। बाकी डिपार्टमेंटल फॉर्मेलिटीज चल रही है। पूरी नए सिरे से हम पूरी तह तक जाएंगे कि ये कार्रवाई, ये एपिसोड कैसे हुआ और कौन इसमें मुलविस है। फिलहाल हमने 3 को हमने दिवसर थाने में बुक किया है। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। कोविड की तीसरी लहर में कमी के आसार को देखते हुए जम्मू डिवीजन में जूनियर स्कूलों की ऑफलाइन क्लासेस दोबारा शुरू कर दी गई हैं। 2 साल के अरसे के बाद आज जूनियर क्लासेस के तलबा ने स्कूलों का रुख किया है। पेश है रिपोर्ट। असातिज़ा की जानिब से तलबा का गुब्बारों, चॉकलेटों और फूलों से इस्तकबाल करने के ये मनाजिर जम्मू डिवीजन के तमाम जूनियर स्कूलों में देखे गए। अव्वल से 9वीं जमात के तलबा स्कूल में दाखिल होते ही असातिज़ा ने इनका इस्तकबाल फूलों से किया। छोटी क्लासेस के इन तलबा ने तकरीबन 2 साल के अरसे के बाद स्कूलों का रुख किया है। पहले नेट नहीं होता था, हम थोड़ा पढ़ भी नहीं पाते हैं और समझ भी नहीं आती है कुछ बातें। फिर वो फ़ोन में नेट भी नहीं होता है, कभी कभी लाइट भी नहीं होती है, इसे फ़ोन कभी कभी स्विच ऑफ होता है। फिर इसी के लिए अब आज बड़ा खुश हो रहा हूँ, आज स्कूल है। ऑनलाइन पढ़ने में बहुत मुश्किल होती थी, बोर्ड पे पढ़ाती, अब बोर्ड पे पढ़ते हैं ना तो अब आसानी होती है। स्कूल इंतजामिया और तदरीसी अमला भी काफी पुरजोश नजर आया।
इनके मुताबिक ऑफलाइन तालीम का तरीका ज्यादा मौसर है, क्योंकि वो तलबा को पूरी तवज्जो और तवानाई के साथ पढ़ा सकते हैं। स्कूल इंतजामिया की जानिब से समाजी फासले का ख्याल रखा गया था। एज ए टीचर तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि 2 साल से बच्चे हमारे ऑनलाइन ही कांटेक्ट में हैं। बिकॉज आपको भी पता होगा मैथ्स जैसा सब्जेक्ट है तो फिज़िकल कांटेक्ट या फेस टू फेस ज़्यादा बच्चों को समझ आता है। ऑनलाइन बड़ी कोशिश करते हैं, बच्चे भी कोशिश करते हैं, बट वैसा नहीं आप उनका बेस बना सकते जैसे आप फेस टू फेस कांटेक्ट में बना सकते हो। स्कूल को हमने 2 हिस्सों में बांटा हुआ है। 1st to 5th जो बच्चे हैं वो सुबह 9 से 12 बजे तक, और जो मिडिल के हैं 6th to 8th वो 12 से 3 बजे तक, और उसके बाद जो 9th 10th है वो हमारी बोर्ड की क्लास है, उसकी हमने सुबह 9 से 3 तक देखा, क्योंकि बच्चों का फ्यूचर का सवाल है। हम बच्चे अच्छी तरह उनको टीचर हैं वो 6 घंटे उनको लगातार पढ़ा रहे हैं। वालिदैन और सरपरस्तों ने भी सुकून की सांस ली। वो भी बच्चों के लिए स्कूल खुलने का इंतजार कर रहे थे। इनका कहना है कि बच्चों की हमाजहत नशोनुमा के लिए स्कूली तालीम बहुत ज़रूरी है। गुड फील हो रहा है मुझे कि बच्चे की कुछ फ्यूचर बनेगा आगे, कि स्कूल में जाएंगे तो थोड़ा बहुत बच्चा एक्टिविटीज़ सीखेंगे। यहाँ पर ऐसे घर पे तो बच्चे को सीख नहीं पा रहे हैं, अब स्कूल जाएंगे 100 चीज़ें बच्चा सीखता है, तो उससे थोड़ी बच्चे में इम्प्रूवमेंट आती है। बड़ा चैलेंज एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है, स्कूल मैनेजमेंट्स के लिए ये है कि जो बच्चे हैं, क्योंकि ये अनवैक्सीनेटेड हैं, इनको अभी वैक्सीनेशन नहीं हुई है, तो ज़ाहिर तौर पर इनको इस कोविड की बीमारी से, इन्फेक्शन से दूर रखने के लिए और जो इनकी क्लास एक्टिविटीज़ है उसको भी अच्छी तरह से स्मूथली चलाने के लिए एक बहुत बड़ा ये एक चैलेंज रहेगा। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। ज़ेबा आपा इंस्टीट्यूट इंक्लूसिव एजुकेशन के तालिब इल्मों ने 10वीं और 12वीं जमात के नताज में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। इन तालिब इल्मों की हौसला अफजाई की गई। बिजबाड़ा में मुनक्किदा तकरीब के दौरान जिस्मानी तौर पर कमज़ोर इन तालिब इल्मों को अवार्ड व असनाद से नवाजा गया। हेल्पलाइन NGO के चेयरमैन जावेद अहमद टाक व दीगर मौजूद रहे। टाक ने कहा कि इन तालिब इल्मों ने जिस्मानी कमज़ोरी को कभी अपनी कामयाबी की राह में हायल नहीं होने दिया। बहुत ही खुश है और इन्होंने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई तालीम के हवाले से। 10th क्लास में नाबीना होके या ना सुनने और बोलने की क़ुव्वत ना होने के बावजूद भी इन्होंने डिस्टिंक्शन हासिल किए है। 1st डिवीज़न में अपने आप को पास किया है, तो ये एक बड़ी बात है। तो हम आपके चैनल के वसादत से ये उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस अपनी नौयत की पहली कार्रवाई में जम्मू पुलिस और रेवेन्यू हुकाम ने कल जम्मू में 13 प्रॉपर्टी डीलर्स और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बरसर रोजगार और रिटायर्ड एहलकारों के 21 मकामात पर छापे मारे। 4 अफराद की गिरफ्तारी के अलावा तकरीबन 26 लाख रुपए की नकदी और बड़ी तादाद में दस्तावेजात जब्त किए गए। बैंक लॉकर की चाबियां भी बरामद कर ली गई हैं। तहक़ीक़ाती एजेंसियां मनी लॉन्ड्रिंग, गैर महसूब असासजात, इंसदाद बदनवानी एक्ट और PMLA वगैरह के पहलुओं का भी जायजा ले रही है। इस कार्रवाई को लेकर लोगों ने कार्रवाई को सराहा है। लोगों का कहना है कि कुछ बड़ी मछलियां अभी भी काम कर रही हैं जिन्हें गिरफ्तार करने की जरूरत है। वो वहाँ उनके पास जाता है, जो मेरा प्लाट है, लोग तो हदबंदी करके चले जाते हैं। वो जो लैंड माफिया एक प्लाट को 4-4 लोगों के बीच में बेच देता है। जब तक ये इनके जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जितने तहसीलदार, पटवारी, गिरदावर वगैरह होते हैं, फर्द यही काटते हैं। इवन के तहसीलदार साइन करता है, पटवारी उससे फर्द कटवाता है। जिन लोगों को पैसे दिए होते हैं उनके कत्ल हो जाते हैं आपस में, बाद में लड़ाई। मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है। मैं जहाँ चट्ठा का रहने वाला हूँ, मेरा एक प्लाट है, अपना घर का ज़मीन है। 50 साल से हम बाहर रह रहे हैं, 70 साल से, और मैं पटवारी से नकल लेने गया हूँ आगे से 50, आपके नाम अभी ज़मीन ही नहीं है, और मेरे दादाजी के नाम ज़मीन है। वो मुझे नकल देने में इतना परेशान कर रहा है। ये लोग हैं एक प्लॉट को 4-4 बार बेच देते हैं। मुझे कह रहा है गवर्नमेंट को और इतने स्ट्रिक्ट एक्शन लेनी चाहिए इनके खिलाफ, ताकि दोबारा किसी नॉर्मल आदमी के साथ ऐसा बिहेवियर ना हो। और वो बेचारा कहाँ से एक 50-50 हज़ार रुपये, 10-10 हज़ार रुपये जमा करके लैंड खरीद लेते हैं यहाँ से। और जो लैंड वाले हैं, जो ये लैंड जो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे जो कंपनियां बना रही हैं, लैंड किसी और की होती हैं, ये बीच में होते हैं। और डबल रेट लेके भी फिर जो कस्टमर से उनको जो लैंड नहीं मिल रही है।
अनंतनाग में सड़क के किनारों पर टू व्हीलर्स की गैर कानूनी पार्किंग के खिलाफ पुलिस ने मुहिम का आगाज किया है। लाल चौक और डीसी ऑफिस के मुत्तसिल पार्क की गई कई स्कूटीज और टू व्हीलर्स को पुलिस ने जब्त किया। उधर लोगों और दुकानदारों ने इस मुहिम का खैर मकदम किया है। लोगों ने जनरल बस स्टैंड अनंतनाग व दीगर मकामात पर आवारा मुसाफिर बरदार गाड़ियों की पार्किंग पर भी रोक लगाने की अपील की है, क्योंकि इससे ट्रैफिक जाम नहीं होता, किसी को प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी, किसी को भी। ये बेचारे बहुत अच्छे कदम उठा रहे हैं, मगर थोड़ा सा दुकानदार को रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए, बाकी हमको कुछ नहीं चाहिए। शुक्रिया। मोदी हुकूमत की जानिब से किसानों की पैदावारी सलाहियत बढ़ाने और बेहतर मार्केटिंग के लिए कई निजी कंपनियों ने एग्रीकल्चर महकमे के साथ इश्तराक किया है। इस ज़मन में एक मरकजी टीम ने कुपवाड़ा का दौरा किया। न्यूज़ 18 के साथ बात करते हुए टीम की सरबराह ने कहा कि कुपवाड़ा में गेरी, अखरोट, शहद और सुर्ख चावल की पैदावार काफ़ी ज़्यादा है। इसको दीगर रियासतों तक पहुंचाने के लिए एक बेहतर ब्रांड की ज़रूरत है। टीम इसको बेहतर नाम और पैकिंग की फराहमी के लिए किसानों को तरबियत फराहम करेगी। टीम ने महकमे की जानिब से तैयार करदा फार्म्स का दौरा किया। काम यही है कि फॉरवर्ड लिंकेजेस, जैसे मार्केट लिंकेजेस प्रोवाइड करना, ताकि फार्मर्स के लिए ये बेहतरीन हो जाए। ये के तौर पे बड़े नाम जो है मार्केटिंग जो प्रोड्यूस का मार्केट करते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे आईटीसी है या रिलायंस फ्रेश है, फ्रेश। लेकिन ये जो है सब जन उतना जो लॉजिस्टिक्स का प्रॉब्लम होता है कि इतने दूर से यहाँ पे आए और यहाँ से इतने दूर से किसान भी लेकर जाए, तो ये जो है ये गैप हमें ब्रिज करनी होगी। तो इसके लिए जगह जगह पे कलेक्शन सेंटर्स या ऐसे कुछ बनते हैं ताकि किसान अपना बहुत कीमती वक्त भी जाया ना करे। हमने इंटरनेशनल ब्रांड जो है लुलु ग्रुप है या एचपीएमसी के जरिए से जो नेशनल लेवल के हमारे कुछ बायर्स हैं उनके साथ पैचअप किया है। तो हमारे प्रोड्यूस में अक्सर ये जो है पैकेजिंग की ये या फिर ब्रांडिंग की दिक्कत आ जाती है। उसमें जो हमारा ये पार्क का ग्रुप है, दे आर गिविंग अस ए कंसल्टेंसी। हनी है या गुच्छी है या बाकी प्रोड्यूस जो हमारा वेजिटेबल का यहाँ निकलता है, उसके फार्मर जो है मेन बड़े बड़े फार्मर है, उनकी इंटरेक्शन इस पार्क ग्रुप के जो हमारे टेरिटरी हेड है इनके साथ करा ली। हमारी जो फार्मर्स हैं इनकी आमदन जो है दुगनी के बजाय चुगनी हो जाए, वो कैश क्रॉप से हो जाएगी, वो अपने वैल्यू एडिशन की वजह से हो जाएगी। कैसे अपने प्रोडक्ट्स की जो है वैल्यू एडिशन करेंगे, पैकिंग कैसे करेंगे, वैक्यूम पैकिंग कैसे करेंगे, ताकि उसकी फ्रेशनेस जो है वो फ्रेशनेस बरकरार रहे और वो मार्केट में जो है अट्रैक्टिव बन जाए। लद्दाख के रुकन पार्लियामेंट जामयांग सेरिंग नामग्याल करगिल के दौरे पर हैं और उन्हें हुक्काम के हमरा मीटिंग की। नामग्याल ने द्रास के कई नौजवानों का बीजेपी में खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की हुक्मरानी से मुतासर होकर कई लोग पार्टी में शामिल हो रहे हैं। पीएम ने कहा कि एमपी ने कहा कि द्रास को जिले का दर्जा देने का मौजू वज़ीर आज़म के साथ उठाया है। उन्होंने अपोजिशन को भी तनकीद का निशाना बनाया। जेडीसी मेंबर संग्रामा इरफान हफीज लोन ने संग्रामा बारामूला के मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया और तरक्याती कामों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि श्रीनगर बारामूला उड़ी कौमी शाहराह को तोसी देने का मामला वजारत ट्रांसपोर्ट के साथ उठाया गया था। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्ट की वजारत ने यकीन दिलाया कि इसमें जल्द ही तेज़ी लाई जाएगी। बलगाम, रजवत, वुगुब, तारजो वगैरह अंबरपुरा और दीगर सड़कों पर बहुत जल्द मैकडम बिछाया जाएगा। साहब ने उस पे बिठाया है, ये क्या कहते हैं कमेटी बनाई है जो वैल्यूएट करेंगे। 10/2 को पिछले ही दिनों आज उनको रिपोर्ट दायर करनी थी और उसमें हम कुछ दिन पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो सेक्रेटरी हमारे हैं हिंदुस्तान के ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में हम गए और उनसे मिले। हम डीजी जो है रोड डेवलपमेंट उनसे मिले। जो चीफ इंजीनियर हमारे यहाँ पर राहुल गुप्ता साहब जो JNK को डील करते इस वाइडनिंग ऑफ कौमी शाहराह की वाइडनिंग, हमने उनको बताया कि आपने BRO से इसे शिफ्ट करना था NHIDCL जो कुछ मंत्री जी ने डिसीजन लिया था, लेकिन उसमें फॉर्मल ऑर्डर्स नहीं। हमें उन्हें कहा या BRO या NHIDCL करे, जो भी करे, लेकिन हमें वाइडनिंग ऑफ नेशनल हाईवे जल्द से जल्द इस पे काम शुरू होना चाहिए और रिकॉर्ड टाइम में। मौसमी हालात में बेहतरी के साथ ही ज़राई सरगर्मियाँ बतदरीज शुरू हो गई हैं और सब्जियों की मुख्तलिफ अक़साम के बीजों की फ़रोख्त में भी तेज़ी आ रही है। खुले बाजार में दुकानदारों समेत गैर रजिस्टर्ड दुकानों पर फ़रोख्त पर पाबंदी है। जो लोग लाइसेंस याफ्ता हैं और जिनकी रोज़ी रोटी का इन्हिसार बीज और दीगर ज़राई मसनूआत की फ़रोख्त पर है, उनका कहना है कि बाज़ार में जगह जगह इन बीजों की फ़रोख्त की वजह से उनका कारोबार बुरी तरह मुतासर हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर ने कहा कि उन्होंने अमले को हिदायत दी कि वो पाबंदी को सख्ती से नाफिज करें।
हमारे सीड का सैंपलिंग होती है, फिर हम आगे डिस्प्ले या कस्टमर को भेजते हैं। और खुदा न खास्ता अगर कस्टमर को कोई शिकायत भी हो, वो कल हम यहाँ पर आ सकता है, कम से कम कंप्लेंट तो कर सकता है। जो रेडियो पे बेचते हैं उनको वो कहाँ ढूंढेगा? आज वो रेडी पे सीड बेचता है, कल केला भेजेगा, परसों कुछ और भेजेगा। तो इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है आम ज़मींदार से कि वो जहाँ पर भी कुछ खरीदे, चाहे पेस्टिसाइड हो, सीड हो, कुछ भी रजिस्टर्ड दुकान से खरीदे तो वो उनके लिए बेहतर रहेगा। अपने जूनियर ऑफिसर्स को साथ लेके गई, वहाँ देखा हमने कि 2-4 ये ठेलों पे, रेडियो पे ना सीड बिक रहे थे। फिर जब हमने उनसे पूछा कहाँ से लाए तो दे वर नॉट एबल टू आंसर कि कहाँ से लाए, क्योंकि सोर्स का नाम उन्होंने पता नहीं दिया। हम उधर ही जाते, हम उनसे कहते कहाँ से लाए हैं, उन डीलर्स को हम वार्न करते क्यों आप बेचते हो, क्योंकि वो खुद भी नहीं लाते हैं कहीं से, घर से तो नहीं लाएंगे। तो वो फेल्ड इन दैट। उसमें हमने क्या किया, सारा हमने सीज किया उनका। तो वी वार्न देम अगेंस्ट, ऐसा नहीं होना चाहिए आइंदा, इंशाल्लाह ठीक रहेगा सारा। श्रीनगर की सादिया तारिक को मॉस्को विशु स्टार्स विशु चैंपियनशिप के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। ये चैंपियनशिप 22 से 28 फरवरी को मुनक्किद हो रही है। सादिया तारिक जूनियर नेशनल विशु चैंपियनशिप में 2 मरतबा गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। चैंपियनशिप में हिंदुस्तान की जूनियर और सीनियर टीम हिस्सा ले रही हैं। चीन में दिसंबर के महीने में मुनक्किद होने वाली यूथ एशियन गेम्स के पेश नज़र मुमकिन खिलाड़ियों को मौका दिया जा रहा है ताकि खिलाड़ियों को यूथ एशियन गेम्स में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने के लिए उन्हें तैयार किया जा सके। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की सेक्रेटरी नुज़हत गुल ने विशु गोल्डन गर्ल सादिया तारिक को मॉस्को विशु स्टार्स चैंपियनशिप के लिए हिंदुस्तानी विशु टीम का रुकन बनने पर मुबारकबाद दी और चैंपियनशिप के लिए उनकी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वुशु एसोसिएशन जम्मू कश्मीर के सदर विजय सराफ ने भी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। नेशनल चीफ कोच ऑफ इंडिया कुलदीप हांडू, जो 19वीं एशियन गेम्स के लिए KIC मेरठ में पहले ही से कौमी वुशु कोचिंग कैंप में हैं, ने भी सादिया तारिक और पूरे हिंदुस्तानी दस्ते को चैंपियनशिप के लिए मुबारकबाद दी है। फौज की राष्ट्रीय राइफल्स ने डोडा के डडगाई गांव में कुव्वत समात व गोयाई से महरूम अफराद को भद्रवा स्नो कार्निवल में शिरकत का मौका फराहम किया। फौज ने इस गांव को गोद लिया है। ये लोग पहली मरतबा अपने गांव से बाहर इस तरह की तकरीब में शामिल हुए हैं। कार्निवल में ये लोग खुसूसी मेहमान के तौर पर शामिल किए गए। जिस्मानी कमजोरी के शिकार इन अफराद ने यहाँ खूब लुत्फ उठाया। उन्होंने स्नो स्लेजिंग, स्कीइंग और दीगर सरगर्मियों में हिस्सा लिया। वो फौज और फेस्टिवल में शरीक दीगर लोगों के रवैये से काफी खुश नजर आए और ये लोग खुश हो गए कि दुनिया भी कहीं बसती है। तो इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि इस दुनिया के साथ हमारे इस गांव को भी ये मतलब हर लिहाज से जोड़ दे फौज। और हमारी पूरी उम्मीदें हैं। ले गए बाहर, इसी बर्फ में कौन लाता है इनको, ये बर्फ में बेचारे बर्फ में काम करके धंधे में लगे रहते हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ 4RR को कि इन्होंने पहली बार यहाँ अल्लाह के इस मेले में इनको दिखाया गया और दुनिया को देखा इन्होंने। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। जिस तरीके से साधारण लोगों ने यहाँ पे एंजॉय किया, उसी तरीके से इन डेफ एंड डम बच्चों ने, उन युवाओं ने, उन लोगों ने यहाँ पे एंजॉय किया। हम भारतीय सेना की जितनी भी उनकी प्रशंसा की जाए इस स्टेप की, क्योंकि ये साइलेंट विलेज कहा जाता है ढड़काई का, जितनी भी प्रशंसा भारतीय सेना की जाए कम है। ईश्वर आश्रम ट्रस्ट ने कश्मीर शिविज्म और शिव दर्शन के हवाले से इंस्टीट्यूशन और वेबसाइट का इफ्तिताह किया। स्वामी लक्ष्मण जी महाराज की तालीमात और इल्म को आगे ले जाने के लिए इकदाम किया गया। यह ऑनलाइन और ऑफलाइन भी मैसर होगा। ट्रस्ट के सेक्रेटरी विजय कुमार कौल ने कहा कि लोगों की सहूलियत के लिए तमाम तालीमात और राइटिंग्स आसान जबान में मुहैया होंगी। मारूफ गुलकारा नैना सप्रो ने कहा कि इस इंस्टीट्यूशन के क़याम से कश्मीर शिविज्म को समझने की राह हमवार होगी। कर रहे हैं कि इसको हम स्प्रेड करें। बिल्कुल, ये जितने भी हमारे पास सीक्रेट साइंस में जो स्वामी जी ने रिवील किए हैं उनको लोगों तक पहुँचाइए, बहुत अच्छे तरीके से पहुँचिए, मतलब बहुत सरलता भाषा में। ये हमें दोनों परस्पर संभव होता है। मतलब हम कोशिश करेंगे, लेकिन लोगों तक प्रोजेक्ट करने के लिए आपका जरिया है। जब तक आप इसमें हमारा मतलब योगदान नहीं, अपनी सहायता नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते, लोगों तक नहीं पहुंच सकते हम। आपकी खासकर आपकी चैनल जो है, आपकी चैनल एवरीवेयर, मतलब आप देखते हैं, हम सब कुछ प्रोग्राम्स देखते हैं, आपका इसमें योगदान रहेगा। कश्मीर शैव दर्शन के बारे में बहुत ही व्यापक रूप से उसकी चर्चा की हुई है। जो हमारे गुरु महाराज जो चाहते थे कि शैविज्म कण कण में व्याप्त हो जाए, हर एक बंदा सीखे इसे, वहाँ एक रुकावट पैदा होती थी। उस रुकावट को दूर करने के लिए उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस भी रखी हैं
ऑफलाइन क्लासेस भी हैं, जितने भी वर्ल्ड वाइड जहाँ से भी हर एक कॉर्नर से जो भी सीखना चाहता है कश्मीर शैव दर्शन को, उनके लिए ये उपलब्ध रहेगा क्योंकि इसकी वेबसाइट भी खुल गई है, जिसकी इनॉग्रेशन भी आज की गई है। तो मुझे लगता है ये बहुत ही वेलकम स्टेप है। डायरेक्टर एजुकेशन कश्मीर तसद्दुक हुसैन का कहना है कि नई तालीमी पॉलिसी लागू होने से मादरी ज़बानों को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने श्रीनगर में महकमे की जानिब से आलमी यौम मादरी ज़बान के मौके पर एक तकरीब से खिताब किया। उन्होंने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए कहा कि कश्मीर में इस साल से किंडरगार्टन शुरू होंगे और तालीमी पॉलिसी के तहत मादरी ज़बान को और ज़्यादा तरवीज दी जाएगी। CEO श्रीनगर मंजूर अहमद के अलावा स्कूल एजुकेशन की कल्चरल विंग के अहदेदारों ने तकरीब से खिताब किया। चेयर्ड बाय एडवाइज़र साहब जो भटनागर साहब है हमारे, उनकी सदारत में एक कमेटी बनी हुई है। तो डिफरेंट ग्रुप्स को डिफरेंट टास्क्स दिए गए हैं और टाइमलाइंस दिए, तो एवरी ग्रुप एंड एवरी टास्क इज़ बीइंग लुक्ड, और ताकि वो हम टाइमलाइंस उसमें बरकरार रखें। जो पहला हमारा टारगेट यहाँ रहेगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की, तो हम पहली बार हम प्री प्राइमरी क्लासेस अपने स्कूलों में शुरू करने, उसमें हमें किंडरगार्टनर्स की ज़रूरत, जो चीफ सेक्रेटरी साहब की हिदायत है उनके हिसाब से इस साल से हमारे तमाम प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स में हमें किंडरगार्टन क्लासरूम्स बनाने हैं। तो वी आर ऑन इट, इंशाल्लाह होपफुली वी विल बी इम्प्लीमेंटिंग दिस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इन लेटर एंड सुपर। इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपुरा के हबा खातून सेंटर में कश्मीरी ज़बान पर एक मीटिंग मुनक्किद हुई। वाइस चांसलर शकील अहमद रिमशो मेहमान खुसूसी थे। वादी के कई मशहूर शुअरा के अलावा डायरेक्टर हबा खातून सेंटर रशीद मजरूह मौजूद रहे। कश्मीरी ज़बान को बचाने के सिलसिले में तबादला ख्याल किया गया। तरक्की खतर कल्चर तरक्की खतर तो तमदन की तरक्की खतर कम कदम पजन अजक दह तुल बेसिकली मलिस माजिन खतर कि तिमन पजन पन शुर पन्नो रूट्सो नश पन्नो जड़ो नश पन्नो मूलों नश पजन तिमन जुदा करें कि बल्कि पजन तिम कनेक्ट तिमन करें, बल्कि पजन तिमन अख रिश्त कायम करुन पन्न बचन हुंद। यह सं रिवायत तथ रिवायत सज मलिस माजि पन्न बचन हुंद रिश्त कायम कर। मादरी ज़बान के आलमी दिन के मौके पर अदबी मरकज़ कमराज की तरफ से एक तकरीब का इनकाद किया गया। ये तकरीब अदबी मरकज़ कमराज के सदर दफ्तर वाक़ई कानसपुरा में मुनक्किद हुई। अदीबों, शायरों, दानिश्वरों, असातिज़ा और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली सरकर्दा शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब की सदारत मीर गुलाम रसूल दर्दपुरी ने की। सदर टीचर्स फोरम बारामूला अशफाक अहमद, हाजी फारूक अहमद लोन, अदबी मरकज़ कमराज के सदर मोहम्मद अमीन भट्ट, मरकज़ के जनरल सेक्रेटरी शबनम तिलगामी और व्यापार मंडल बारामूला के इंजीनियर तारिक अहमद मुगलू भी मौजूद थे। इस ज़बान की प्रमोशन के और इसके प्रिजर्वेशन के ज़बरदस्त इम्कानात है और उस पस मंज़र में बहुत सारा काम भी हो रहा है। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन और महकमे तालीम मिल के बहुत सारा काम कर रहे हैं। हम मुख्तलिफ ज़बानों का जो सब्जेक्ट्स को ट्रांसलेट कर रहे हैं और लिटरेचर को ट्रांसलेट कर रहे हैं कश्मीरी ज़बान में, मैथमेटिक्स को, साइंस को, सोशल साइंस को, और ये काम जम्मू कश्मीर बोर्ड ने दस्त लिया है और अभी तक उसमें बहुत पेश रफ्त है। और हम ये उम्मीद है कि इस साल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो हमारे हैं उनकी सरबराही में ये सरकार इस में सफल हो जाएगी कि अत मौके पे नव तालीमी पॉलिसी तम के हवाले मुस्तकबिल के हवाले कशर ज़बान हंद मुस्तकबिल के हवाले इम्कानात रोशन गमत तम कित करो नो तमिस तकमीलस तो तथ मज ये अदबी मरकज़ कमराज जम्मू कश्मीर ताउन जरूरत आए तम खतर सपद आज सारी बे एक फिर वाद बंद। आलमी यौम मादरी ज़बान के हवाले से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुलगाम में तकरीब मुनक्किद हुई। मारूफ कश्मीरी शायर अयूब साबिर मेहमान खुसूसी थे। मकामी अदबी तंजीम के इश्तराक से मुनक्किदा तकरीब में शुअरा और कॉलेज इंतजामिया समेत तलबा और तालिबात ने शिरकत की। मादरी ज़बान के फ़रोग़ और इसे घर घर आम करने के हवाले से इक़दामात उठाने पर जोर दिया गया। कश्मीरी ज़बान में रंगारंग प्रोग्राम पेश किए गए। बदरन मागाम में गुलशन कल्चरल फोरम कश्मीर के ज़ेर-ए-एहतमाम मादरी ज़बान के आलमी दिन के मौके पर एक तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब की सदारत माहिर तालीम और फोरम के सदर सैयद बशीर कौसर ने की। मारूफ अदीब, शायर और कल्चरल एक्टिविस्ट गुलशन बदरनी ने कलीदी खुतबा पेश किया। तलबा और तालिबात की खासी तादाद में मौजूद थे। मजमून नवीसी और क्विज़ मुकाबला भी मुनक्किद हुआ। इम्तियाजी पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों को एजाज़ात से नवाजा गया। मुकर्रिरीन ने हुकूमत पर जोर दिया कि वो 9वीं और 10वीं क्लास के लिए कश्मीरी को लाजमी सब्जेक्ट करार दें।
یوم مادری زبان کے حوالے سے ساگر کلچرل فورم ذکر پٹن کی جانب سے سیکنڈری اسکول ذکر میں ایک روزہ ادبی کانفرنس منعقد ہوئی۔ کانفرنس میں کشمیری، پہاڑی اور گجری زبان کے حوالے سے معروف قلمکاروں نے اپنے مقالے پیش کیے۔ معروف شاعر بشر زوگیاری کی تصنیف نعت کی رسم رونمائی انجام دی گئی۔ پہلی نشست کی صدارت معروف شاعر رنجور تلگامی نے کی۔ نوردین ہوش مہمان زی وقار کی حیثیت سے موجود رہے۔ بالی ووڈ ایکٹر اختر حسینی نے بھی شرکت کی۔ فورم کے سرپرست ساگر نذیر نے مہمان کا استقبال پیش کیا۔ بعد میں ایک محفل مشاعرہ منعقد ہوا۔ کنزلون کے کورکبل نامی علاقے میں فوج کی جانب سے مادری زبان کے عالمی دن کے حوالے سے ایک تقریب منعقد کی گئی۔ بچوں اور علاقے کے سرکردہ شخصیات شہریوں نے شرکت کی۔ شرکاء نے شینا زبان میں اپنا کلچر کی جھلکیاں پیش کی۔ مقامی لوگوں نے فوج کی جانب سے گریز کے کلچر کو فروغ دینے کے حوالے سے کیے جا رہے اقدامات کی سراہنا کی۔ مادری زبان کے عالمی دن کے موقع پر گورنمنٹ پرائمری اسکول پہل بنی کنزر میں بھی ایک پروگرام منعقد ہوا۔ اس پروگرام میں کافی تعداد میں بچوں نے شرکت کی۔ کشمیری زبان کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ اسکولی بچوں نے کشمیر کی روایتی اشیاء کے ذریعے سے بھی مادری زبان کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ یوم مادری زبان کے سلسلے میں سی ای او بارہمولہ نے ایک تقریب کا انعقاد کیا۔ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول بارہمولہ میں تقریب کا انعقاد ہوا۔ میونسپل کونسل کے صدر یوسف، سی ای او جی ایم لون، ضلع انفارمیشن افسر جہانگیر اخون اور دیگر افسران و طلباء نے شرکت کی۔ مقررین نے قوموں کی ترقی میں مادری زبان کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک سماج کی پہچان ہوتی ہے۔ مرکز کی سائنس اور ٹیکنالوجی تنظیم کی جانب سے 22 فروری سے ہفتہ طویل پروگراموں کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ جموں یونیورسٹی میں بھی ایک تقریب منعقد ہوگی۔ جموں یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر منوج کمار دھر نے اسے یونیورسٹی انتظامیہ کے لیے فخر کی بات قرار دیا اور کہا کہ اس سے خطے کے تمام طلباء کو فائدہ پہنچے گا جو سائنس کے مضمون میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ میونسپل کمیٹی اونتی پورہ نے میونسپل حدود میں ناجائز قبضہ کرنے والوں کے لیے جانکاری پروگرام منعقد کیا۔ لوگوں کو 20 فروری تک قبضہ ہٹانے کی مہلت دی گئی تھی۔ سرکاری زمین پر غیر قانونی تعمیرات کھڑے کرنے والوں کو قبضہ ہٹانے کو کہا گیا۔ ایگزیکٹو افسر کے مطابق اگر کسی شخص نے اپنا قبضہ نہیں ہٹایا تو ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ جمعیت اہل حدیث قمرواری یونٹ نے آج پاریمپورہ سری نگر میں منشیات سے متعلق آگاہی پروگرام کا انعقاد کیا۔ پروگرام کے دوران گھریلو تشدد، بے روزگاری اور ذہنی تناؤ جیسے مسائل پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ لوگوں نے خصوصاً نوجوانوں کی کثیر تعداد نے اس پروگرام میں شرکت کی۔ پروفیسر ظہور احمد شاہ المدنی مہمان خصوصی تھے۔ علماء کرام نے نوجوانوں سے اپیل کی کہ وہ منشیات اور دیگر جرائم سے دور رہیں اور معاشرے کی بہتری میں اپنا کردار ادا کریں۔ ڈی آئی جی شمالی کشمیر ادے بھاسکر بلا نے بانڈی پورہ کے سنبل علاقے میں ایک والی بال ٹورنامنٹ کا افتتاح کیا۔ سیوک ایکشن پروگرام کے تحت منعقدہ ٹورنامنٹ میں 8 ٹیمیں شرکت کر رہی ہیں۔ افتتاحی تقریب کے دوران ایس ایس پی بانڈی پورہ کے علاوہ دوسرے پولیس افسران اور پنچایتی نمائندے موجود تھے۔ ڈی آئی جی کا کہنا ہے کہ اس طرح کے کھیل مقابلے منعقد کرنے کا مقصد نوجوانوں کو منشیات اور دوسری غیر قانونی سرگرمیوں سے دور رکھنا ہے۔ یوتھ سروسز اینڈ سپورٹس کی جانب سے بوائز ہائر سیکنڈری اسکول کپواڑہ میں کھوکھو اور والی بال ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا۔ ٹورنامنٹ میں مختلف اسکولوں سے آئے طلباء نے حصہ لیا۔ اس موقع پر جیتنے والے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ ڈسٹرکٹ یوتھ سپورٹس افسر کپواڑہ بھی موجود رہے۔ کشمیر نیوز میں فی الحال اتنا ہی۔ آداب۔